Hello students, how are you all? Welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. So students, we have an app by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store for Android phones. Once you have downloaded and logged in with your Gmail ID, you will be transferred to your home page where you can see all the courses that are offered by us. Once you have purchased the course, you can see your courses in the My Course section. But why our courses are so better? Why we think we provide you one of the best content? Because we provide you content on daily basis. In the daily basis, we provide you current affairs with 20 questions quiz as well as the PDF of the current affairs of daily. Then similarly for weekly, on weekly basis we provide you current affairs PDF as well as a 50 questions quiz that will help you to revise all the content that you have learned. Then on monthly basis also we provide you top 100 current affair questions PDF that will be the compiled PDF of the 100 questions of that particular month that will be very helpful for you. And not just this friends, we provide you in English as well as in Hindi too. So both English and Hindi students can enjoy our courses. Apart from this friends, we also provide you banking related question answers, the banking related MCQ questions, the quizzes that will help you prepare for the bank exams. Not just that friends, we provide you a new way of learning, that is your infotainment infographics. That is a different and interesting way of learning. Apart from this, we cover 20 topic wise current affairs. These topics are important such as apps, portals, important days, books and authors days, national affairs, international affairs, sports, defense, all these topics, these are highly important and questions from these particular topics are asked. Also we cover state-wise current affairs also that will help you to prepare for your state exams. Also friends, as I told you, if you use the code Vikas10, you will be given extra 10% discount on the purchase you make. If you have any problem regarding login and your application, then you can contact us on support@affairscloud.com. This is our email ID and you can contact us on our mobile phone, that is 9677333386. हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करें। और ये जो होगा आज 6 दिसंबर के करंट अफेयर्स रहेंगे आपके। पहले कुछ रिवाइज कर लेते हैं करंट अफेयर्स। जैसे अभी रिसेंटली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के 21 आइलैंड्स को, जो कि अनहेबिटेड आइलैंड्स हैं, उनको नेम किया गया आफ्टर डेकोरेटेड सोल्जर्स। 21 सोल्जर्स के नेमिंग की गई ऑन फॉर दिस 21 अनहेबिटेड आइलैंड्स। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि अंडमान निकोबार आइलैंड के कितने आइलैंड्स जो कि अनहेबिटेड थे उनको सोल्जर्स के नाम के बिहाफ पे, सोल्जर्स को ऑनर करने के लिए नेमिंग की गई, तो 21 आइलैंड्स। फिर आ जाता है प्राइड ऑफ सेंट्रल इंडिया। इस अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया? वो है अतुल पटीदार। और याद रखेंगे अतुल पटीदार ही फाउंडर रहेंगे फार्म कार्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि विच इज द बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया फॉर 2022, या फिर पूछ लेंगे कि बैंकर्स बैंक 2022 अवार्ड से किस बैंक को सम्मानित किया गया, तो वो रहेगा कैनरा बैंक। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है, कैनरा बैंक के साथ ही साथ अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विच इज द बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया, तो याद रखेंगे कौन सा बैंक है, वो है हमारा बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा बैंक रहेगा? कैनरा बैंक। और एक चीज और, जो बैंकर्स बैंक 2022 अवार्ड है ना, इसी को ऑस्कर अवार्ड ऑफ द बैंकिंग सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट बात करते हैं अर्थ शॉट प्राइज 2022 की। अर्थ शॉट प्राइज की बात करें तो ये प्राइज आपकी 5 फील्ड में दिया जाता है। और इस बार किनको सम्मानित किया? प्रिंस चार्ल्स के द्वारा इस अवार्ड को दिया गया। और 5 फील्ड जो हम बात कर रहे हैं वो कौन सी है? प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर नेचर, क्लीन आवर एयर, रिवाइव आवर ओशंस, बिल्ड अ वेस्ट फ्री वर्ल्ड एंड फिक्स आवर क्लाइमेट। ये 5 फील्ड रहेंगे और आप इनके रिस्पेक्टिव लोगों को देख सकते हैं जहां पर इनको सम्मानित किया गया। प्रिंस विलियम के द्वारा इस अवार्ड को दिया गया था। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड फिशरीज डे। 21 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड फिशरीज डे को। फिर आ जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। 2 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे 2 दिसंबर को। और इंपॉर्टेंट बताया था, और इसी के साथ बताया था मैंने आपको, कंप्यूटर लिटरेसी डे भी ऑब्जर्व करेंगे हैं 2 दिसंबर को। फिर आ जाता है इसी के साथ साथ एक और याद रखेंगे रिवीजन के तौर पे, 26 नवंबर को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया पार्लियामेंट ने अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक अप्रूव किया है इंडिया के साथ, और ऐसा ही हमारा एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया एंड यूके के बीच में भी अप्रूव होना है, लेकिन उसकी अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है। नेक्स्ट वर्ल्ड फिशरी डे हम देख ही चुके हैं, 21 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये तो थे फ्रेंड्स रिवीजन के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं आपके आज के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। टू दैट सबसे पहले आ जाते हैं, हम बात करते हैं सैयद सिलचर फेस्टिवल। पहला एडिशन है ये आपका सिलचर सैयद फेस्टिवल का। ये सिलचर सिलहट फेस्टिवल कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है, कब से कब ऑब्जर्व किया जाता है, किस लिए ऑब्जर्व किया जाता है, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो देखते हैं कि ये पहला एडिशन था, फर्स्ट एवर फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग, ठीक है, कल्चर। ये पहला फेस्टिवल था जो कि कहाँ से कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेटिंग कब से कब तक ऑब्जर्व किया जाता है, 2 से लेके 4 दिसंबर के बीच में ऑब्जर्व किया जाता है। बराक वैली इन सिलचर असम इसको ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। और ये सेलिब्रेट किया जाता है फॉर सेलिब्रेटिंग द कल्चरल टाइज बिटवीन द नेबरिंग रीजन्स ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। और कहाँ पे ऑब्जर्व किया गया, सिलचर असम में इसको ऑब्जर्व करा गया था, ठीक। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे इस डे को और इस फेस्टिवल को। ऑलराइट, फिर याद रखेंगे जो सिलचर सिलहट फेस्टिवल है ना, ये 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड 50th एनिवर्सरी ऑफ लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम पाकिस्तान को कोइंसाइड करता है, ठीक। यही फेस्टिवल आपका रिविजिट करता है वो वैल्यूज जो आपकी कॉमन शेयर्ड हेरिटेज हैं ट्विन सिटीज की, उनको ऑनर करने के लिए यहाँ पे हम शोकास करते हैं ट्राइबल कल्चर को, कुजीन को, लिटरेचर को, आर्ट एंड क्राफ्ट को, ताकि एक कल्चरल डाइवर्सिटी और लोगों को कल्चर के बारे में बताया जा सके, ठीक है। तो याद रखेंगे पहला सिलचर सिलहट फेस्टिवल कहाँ ऑब्जर्व किया गया था। ये पहला सिलचर सिलहट फेस्टिवल ये आपका बैराक वैली में सिलचर असम में ऑब्जर्व किया गया था फ्रॉम 2 to 4 दिसंबर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 17वीं सेशन ऑफ इंटर गवर्नमेंटल कमिटी। ये अभी रिसेंटली ऑब्जर्व हुई थी, 17th एडिशन ऑफ इंटर गवर्नमेंटल कमिटी फॉर सेफगार्डिंग द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। अब इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट की बात हम कर चुके हैं कि इंटेंजिबल क्या होता है, जिसको आप टच नहीं कर सकते। जैसे फेस्टिवल्स हो गए आपके, वो एक वाइब होती है, उसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, आप उसको फिजिकली टच नहीं कर सकते। तो ऐसे याद रखेंगे 17वां एडिशन हुआ था इंटर गवर्नमेंटल कमेटी का, जो कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के ऊपर होती थी। और ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है अगर मैं पूछूं तो यूनेस्को के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। और अगर आपको याद हो, इंडिया से दुर्गा पूजा वो फेस्टिवल था जो कि वेस्ट बंगाल का था, इसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में भी ऐड करा गया था। और जो ये कमेटी जिन चीज़ों को ऐड करती है उसमें इंडिया को भी नॉमिनेट करा गया था, ऑलराइट, कि वो सेलेक्ट करेंगी। तो इसी के साथ साथ याद रखेंगे हमने बात की 17th एडिशन ऑफ इंटर गवर्नमेंटल कमिटी ऑन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। ये कहाँ पर हुई थी, पहली चीज़ तो ये बता दो, ये आपकी हुई थी मोरक्को में, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और ये मीटिंग को चेयर किन के द्वारा किया गया था, एम्बेसडर एंड परमानेंट डेलीगेट ऑफ मोरक्को टू यूनेस्को जो है समीर अढारे, इनके जी द्वारा इस मीटिंग को 17th एडिशन ऑफ इंटर गवर्नमेंटल कमिटी ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट को होस्ट करा गया था, ठीक। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। इस सेशन में हमने विटनेस किया 47 न्यू आइटम जो कि आपकी यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में ऐड किए गए, जो कि 60 कंट्रीज के द्वारा सबमिट करे गए थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक रैंकिंग रिलीज की गई जिसमें बताया गया कि जो एविएशन सेफ्टी होती है वो किस कंट्री की ज़्यादा है। मतलब अगर आप एयरप्लेन से ट्रैवल करते हैं तो किस कंट्री की एविएशन सेक्टर को हम सेफेस्ट मानेंगे। तो यहाँ पर अगर डाटा देखा जाए तो इंडिया की पोजीशन 48 पोजीशन पे आई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी याद रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इंडिया ने सरपास कर दिया है इवन चाइना को, नॉर्वे को, पोलैंड को फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लोकेशन
फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। ठीक है, अगर हम बात करें ये डाटा किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डाटा रिलीज किया गया। इंडिया की रैंक 2022 में रही 48, जहां पे इंडिया की रैंक 2018 में थे 102nd, और इंडिया ने बहुत अच्छा जंप देखने को मिला विद इन 4 ईयर्स कि इंडिया की रैंक 2022 में 48 हो गई है। चाइना यहीं पे 49th पोजीशन पे है एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट रैंक एवर ऑब्टेन्ड बाय इंडिया, जो कि है 48 पोजीशन पे। ऑलराइट, याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स की। हम बात कर रहे हैं प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स की। ये प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स अभी रिसेंटली किसके द्वारा रिलीज किया गया, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। नाइट फ्रैंक, इनके द्वारा इसको रिलीज किया गया। ये थर्ड क्वार्टर का था 2022 का। यहाँ पे बताया गया कि अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें, जो हमारा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन हमें देखने को मिला है, मतलब जो बढ़ाव देखने को मिला है, जो प्राइस राइज हुए हैं, उसके हिसाब से डाटा रिलीज किया गया। और यहाँ पे बताया गया जो मुंबई है, यहाँ पर हमें 22nd स्पॉट पे हमें ये देखने को मिला इन द वर्ल्ड, इन द ग्लोबल इंडेक्स, जो कि एनुअल एप्रिसिएशन की बात करता है ऑफ द प्रीमियम रेजिडेंशियल एंड प्रॉपर्टीज की। तो ये प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स था थर्ड क्वार्टर 2022 का। नाइट फ्रैंक के द्वारा इसको रिलीज किया गया था और यहाँ पे मुंबई, इंडिया में मुंबई की रैंक रहेगी 22nd स्पॉट पे। यहीं पे अगर मैं बात करूँ आपका टॉप किस पे किया था, तो वो था दुबई ने टॉप किया यहाँ पे, जो कि मिडल ईस्ट रीजन में आता है, और 88.80% का हमें अप्रिशिएशन देखने को मिला इन द पास्ट 12 मंथ्स। और यहीं पर अगर क्वार्टर की बात करें तो 29.30% का हमें यहाँ पे 29.30% का हमें अप्रिशिएशन देखने को मिला है। ठीक है, सेकंड पे फिर मियामी, फिर थर्ड पे टोक्यो और मुंबई आ जाता है 22nd पोजीशन पे। और एक चीज और फ्रेंड्स, पहले हम डिस्कस करते थे टेल अवीव। टेल अवीव आपकी वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है, लेकिन अब ये थर्ड पोजीशन पे आ गई है। फर्स्ट पोजीशन पे इज न्यूयॉर्क, सेकंड पे इज सिंगापुर, और थर्ड पे अब टेल अवीव आ गई है इन द टर्म्स ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे NSE इंडिसेस लिमिटेड। इनके द्वारा अभी रिसेंटली एक लॉन्च किया गया है नया इंडेक्स, जो कि है निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स अप्रैल 2023। ये आपका जो निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स है, ये लॉन्च किया गया अंडर भारत बॉन्ड इंडेक्स विद इन द निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स सीरीज। और ये जो आपका बॉन्ड है, इसको याद रखेंगे, दिस न्यू ट्रांच ऑफ दिस भारत बॉन्ड ETF, जो कि इंडिया का पहला कॉर्पोरेट बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, इसको लॉन्च किया गया था फॉर न्यू फंड ऑफर ऑफ द ETF। ये ओपन किया जाएगा 2 दिसंबर 2022 को टू 8 दिसंबर 2022 तक। और जो इसका मैच्योर डेट है वो क्या है, 18 अप्रैल 2033। नेक्स्ट हम बात करेंगे पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने अभी 10 मिलियन यूरो का ग्रांट अप्रूव किया है फॉर रिसर्च इनटू मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। काफ़ी लॉन्ग टर्म के जो प्रोजेक्ट रहने वाले हैं इंडिया और नेपाल में, जो हेल्थ रिलेटेड कंडीशंस हैं उस पर रिसर्च करने के लिए एंड उन पे आगे बढ़ने के लिए ये 10 मिलियन यूरो का फंड ग्रांट किया गया टू इंडियन रिसर्चर्स बाय पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया। इसी के साथ साथ याद रखेंगे, इंडिया से तो थी पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, और अगर मैं ग्लोबल स्केल पे बात करूं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर के द्वारा ये इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलके ये 10 मिलियन यूरो का फंड अप्रूव किया गया है फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट्स। ठीक, यहीं पे आप देख सकते हैं कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया एंड यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर, इन दोनों को अवार्ड, इन दोनों ने मिलके 10 मिलियन यूरो का ग्रांट अप्रूव किया ताकि रिसर्चर्स आगे वर्क कर सके। और रिसर्चर यहाँ पे किन चीज़ों पे वर्क करेंगे, अगर हम ध्यान से देखें तो ये वर्क करेंगे आपके क्वालिटी बिल्डिंग पे, जो कि आपके होंगे जैसे सेफ्टी से ऊपर, आपके हेल्थ केयर से ऊपर, आपकी डायबिटीज़ के ऊपर, ठीक है, न्यूट्रिशंस के ऊपर, कैसे लोगों को ज़्यादा बेटर न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जा सकता है, कैसे डिजीज़ को एलिमिनेट किया जा सकता है, हेल्थ केयर सेक्टर को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों पे यहाँ पे काम किया जाएगा।
नेक्स्ट आ जाते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट, और हम काफ़ी दिन से इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आई होप आपको याद हो गई होगी। अगर मैं बात कर रहा हूँ फिजिकल ईयर 23 की, तो इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की जा रही है वो है 7%। मैं ये एसएनपी की बात कर रहा हूँ अभी। और यहीं पे अगर मैं बात करूँ फिजिकल ईयर 24 की, तो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की गई है 6% की। और ये 2023 का मतलब 2023 अगले साल की है, और 2022 की पूछी जाए तो 7%, जिसको 2000 फिजिकल 23 को कैसे लिखते हैं हम, फिजिकल ईयर 23 को 2022 से 2023, ठीक, जिसका मतलब होता है ये 2022 का है। और यहाँ पे ये बात की जाए ये है फिजिकल ईयर 24 का, जिसका मतलब 2023 से 2024 की बात की जा रही है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। तो एस&पी ग्लोबल रेटिंग्स ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट, अगर मैं बात करूं इस साल की 2022 की, तो 7% प्रोजेक्ट किया, और आने वाले साल 2023 की 6% प्रोजेक्ट की। रीजन बीइंग क्या है कि जो हमें देखने को मिल रही है रिसेशन की बातें, जियो पॉलिटिक्स, वो सारी बातों की वजह से आपका कम प्रोजेक्ट की गई है। इवन अगर आप देखें तो पहले जो प्रोजेक्ट की थी 2023-24 के लिए, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए 6.5 थी, लेकिन उसको रिड्यूस करके 6 कर दिया है। ऐसे ही पहले थी 7.3% फॉर 22-23 के लिए, इसको रिड्यूस करके 7% कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीनियर न्यूक्लियर साइंटिस्ट केवी सुरेश कुमार। इनको रिसेंटली अभी नया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है भाविनी का। भाविनी क्या है आपका, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं, केवी सुरेश कुमार। ये एक रियॉन्ड साइंटिस्ट हैं ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, और ये भाविनी कहाँ पर है, तमिलनाडु में, और इनको 3 साल के लिए इनका नया चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं यूएस एयरफोर्स का अभी एक नया न्यूक्लियर स्टेल्थ बॉम्बर रिलीज किया गया उन्होंने, जो कि है B-21। और ये B-21 क्या है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट। ठीक, इसको बनाया गया किन के द्वारा, क्वेश्चन पूछा जाए तो नॉर्थरॉप ग्रूमन के द्वारा। किन के द्वारा, नॉर्थरॉप ग्रूमन के द्वारा ये आपका डेवलप किया गया है, जो कि 6th जनरेशन, वर्ल्ड का पहला 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट रहेगा। कुछ 700 मिलियन US डॉलर की लागत से इसको बनाया जाएगा। ऑलराइट, एंड इट कैन कैरी न्यूक्लियर वेपन ऑल्सो। मूविंग ऑन, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये फ्रेंड्स। अभी रिसेंटली IIT मद्रास के रिसर्चर्स के द्वारा एक मशीन डेवलप किया गया है, एक इक्विपमेंट डेवलप किया गया है। उस इक्विपमेंट का नाम है सिंधुजा 1। ये सिंधुजा 1 क्या इक्विपमेंट है कि जो आपकी ओशन में जो वेव्स हैं उसकी एनर्जी को यूज करते इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करेगा। और हम जानते हैं जो ये वेव्स बनती हैं ओशन में, जो हाई टाइड लो टाइड आ जाती हैं, ये सारी रीजन किसका होता है, मून की ग्रेविटी की वजह से होता है। ठीक, तो ये जो आपका इक्विपमेंट है, जो वेव्स ऊपर नीचे होंगी उसकी मदद से जो वेव्स की जो एनर्जी है, जैसे ऊपर नीचे होंगी, ये टकराएंगी इस इक्विपमेंट से, तो वो जो टकराने की एनर्जी होगी ना उसको स्टोर कर देगा ये कैसे ना कैसे, और उसको फिर ये इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगा। तो ये आपका नया टेक्नोलॉजी, एक प्रोडक्ट डेवलप किया गया है IIT मद्रास के रिसर्चर्स के द्वारा, जो कि है सिंधुजा 1 के नाम से। और ये बेसिकली क्या, जैसे मैंने आपको अभी बताया, क्या करेगा, ये आपकी वेव एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इनटू इलेक्ट्रिसिटी। काफी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करेंगे, याद रखें। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाटा स्टील चेस इंडिया टाइटल की। आई रिपीट, अगर मैं बात करूं टाटा स्टील चेस इंडिया टाइटल 2022 की, तो यहाँ पर किन्होंने जीता, अर्जुन अर्गेसी, इन्होंने टाटा स्टील चेस इंडिया ओपन ब्लिट्स टाइटल को जीता। और यहीं पे अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल मास्टर वैशाली रामेश बाबू की, इन्होंने भी 2022 का टाटा स्टील इंडिया वीमेंस ब्लिट्स टाइटल को जीत लिया है। तो याद रखेंगे दोनों को। ये 29 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर के बीच में हुआ था, और ये 4th एडिशन था ऑफ द टाटा स्टील इंडिया रैपिड एंड ब्लिट्स चेस टाइटल का। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंच ऑथर पद्मा भूषण अवॉर्डी डोमिनिक लेपेर, इनका रिसेंटली निधन हो गया है, इनको याद रखेंगे। ये काफ़ी फेमस फ्रेंच ऑथर थे, इन्होंने कुछ बुक्स को ऑथर किया था। उनके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं, इनकी बुक रहेगी जैसे एस पेरिस बर्निंग, सिटी ऑफ जॉय, 5 पास्ट मिडनाइट इन भोपाल। ये बुक्स इन्होंने ऑथर की हैं। 550 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपीज़ की इन्होंने अपनी बुक्स की बेची हैं, और इनका रिसेंटली निधन हो गया है। ठीक है, 1931 में इनका जन्म हुआ था फ्रांस में ही, और ये फ्रांस के ही रहने वाले हैं।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है आपकी नेवी डे की। 4 दिसंबर को हम नेवी डे बात ऑब्जर्व करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक, क्योंकि नेवी हमारे सी रीजन से हमको प्रोटेक्ट करती है, एक हमारी फोर्स का पार्ट है जो कि नेवी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक, इसलिए हम ऑब्जर्व करते हैं इनको ऑनर करने के लिए। फिर एक आ जाता है इंडियन नेवी वीक, वो कब से कब ऑब्जर्व करते हैं, 1 से लेके 7 दिसंबर के बीच में हम इंडियन नेवी वीक भी ऑब्जर्व करते हैं, ठीक, इसको याद रखेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट आ जाते हैं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, कौन है इंडिया के, वो है एडमिरल आर हरि कुमार सर। हेडक्वार्टर इंडिया नेवी का कहाँ है, वो आपका न्यू दिल्ली में है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाता है फिर आपका इंटरनेशनल डे ऑफ द बैंक्स। 4 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स। ऑलराइट, कब, 4 दिसंबर को। और पहली बार हम याद रखेंगे ये जो थर्ड एडिशन है, 4 दिसंबर 2022 को हमने ऑब्जर्व किया, थर्ड एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ द बैंक्स। और थर्ड एडिशन है तो मतलब 2019 में हमने पहली बार ऑब्जर्व करा था इसको। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड सॉइल डे। वर्ल्ड सॉइल डे कब ऑब्जर्व करते हैं हम वर्ल्ड सॉइल डे को, 5 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड सॉइल डे। और यहीं पे आपको इसकी डे को क्यों अवेयर ऑब्जर्व किया जाता है, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी सॉइल, ठीक, यहीं पर आपको इसकी थीम याद रखनी है, थीम रहेगी सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस, ये आपकी थीम रहेगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं महाराष्ट्र, वो पहली स्टेट बनी जिन्होंने दिव्यांग डिपार्टमेंट को लॉन्च किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट, आई रिपीट, दिव्यांग डिपार्टमेंट को लॉन्च करने वाली वो पहली स्टेट कौन सी बनी, वो है महाराष्ट्र। और इसके लिए कुछ 1143 करोड़ रुपीस को फाइनेंशियल आउटले के लिए तौर पे इसको यूज़ किया जाएगा, ताकि जो दिव्यांग हैं, जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल है, उनकी हेल्प की जा सके, उनके लिए भी यहाँ पे आगे स्कीम्स को लॉन्च किया जा सके। तो यहीं पे याद रखेंगे महाराष्ट्र वो पहली स्टेट बनी इंडिया में टू लॉन्च अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पीपल। नेक्स्ट आ जाता है तेलंगाना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी फ्रेंड्स। तेलंगाना ने अभी कॉइनबेस के साथ टाई अप किया है ताकि Web3 टेक्नोलॉजी पे वर्क किया जा सके। और हम जानते हैं तेलंगाना में टी हब है, हैदराबाद में टी हब 2.0, ये क्या है, टेक्नोलॉजी हब, ताकि स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट दे सके। और इसलिए याद रखेंगे ये कॉइनबेस क्या है बेसिकली, अगर आपको पता हो तो यहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी अपनी स्टोर भी कर सकते हैं। तो आगे इस टेक्नोलॉजी पे वर्क करने के लिए, यूथ को यहाँ पे ट्रेनिंग देने के लिए, यूथ को, स्टार्टअप्स को यहाँ पे ट्रेन करने के लिए इन दिस पर्टिकुलर Web3, यहाँ पर तेलंगाना स्टेट ने कॉइनबेस के साथ टाई अप किया फॉर Web3, काफ़ी इंपॉर्टेंट, मार्क करना है इसको भी। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इंडिया का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ पे सेटअप किया जाएगा, हैदराबाद में किया जाएगा। इंडिया का पहला गोल्ड एटीएम, मतलब आप जाइए, जैसे आप एटीएम से पैसे निकालते हैं वैसे ही आप अपना गोल्ड निकाल पाएंगे एटीएम के थ्रू। ये दुबई में तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, आप जाइए एटीएम के थ्रू आप गोल्ड को ईजिली ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। इंडिया में ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लॉन्च किया गया है, गोल्ड शिक्षा प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी रहेगी हैदराबाद बेस्ड, जिन्होंने ये आपका पहला एटीएम गोल्ड मशीन को लॉन्च किया, जो कि 24 आवर्स अवेलेबल रहेगी, ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाता है जम्मू एंड कश्मीर का पहला फास्ट टैग एनेबल्ड पार्किंग सिस्टम लॉन्च किया गया, जो कि पार्क प्लस नाम की एक कंपनी है उनके द्वारा लॉन्च किया गया। ये सिर्फ पार्क प्लस जम्मू एंड कश्मीर की ही ओन कंपनी नहीं है, ये ऑल ओवर द इंडिया यूज़ की जा रही है। इवन हमारे जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पर सोसाइटी में भी पार्क प्लस की आपकी एप्लीकेशन लगी हुई है। जैसे भी आप गेट से एंटर करते हैं तो गेट का ऑटोमेटिकली वो खुल जाते हैं। तो ये है आपका पार्क प्लस टेक्नोलॉजी की मदद से ही आपका ये फास्टैग एनेबल्ड पार्किंग सिस्टम लॉन्च किया गया इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि लॉन्च किया गया एज अ पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का माई टाउन माई प्राइड के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट है कतर होस्ट करेगा AFC एशिया कप 2023 को, और कतर में ही आपका 2022 का फीफा वर्ल्ड कप अभी चल रहा है। देन ज्योति याराजी, इन्होंने ब्रेक किया है नेशनल रिकॉर्ड इन 100 मीटर हर्डल्स। जेवलिन थ्रोअर DP मानू वन द गोल्ड मेडल एट द नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप। इंडियन जूनियर वीमेंस टीम ने जीता 10 मीटर एयर पिस्टल गोल्ड मेडल एट द ISSF। देन 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें, कहाँ पर हुए, मध्य प्रदेश में। वेस्टर्न एयर कमांड ऑफ IAF वन द एयर फोर्स लॉन टेनिस चैंपियनशिप। सागर डांगी, इन्होंने 2 मेडल जीते एट द ISSF वर्ल्ड
चैंपियनशिप, ये भी मार्क करेंगे, लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आ जाता है, गोवा के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया पर्पल फेस्ट लोगो। हरियाणा के गवर्नमेंट ने एक टॉफी स्कीम को लॉन्च किया। टॉफी स्कीम क्या थी? ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च किया गया हरियाणा के द्वारा। फिर वर्ल्ड का पहला वैदिक क्लॉक कहाँ पे इंस्टॉल किया गया? उज्जैन में। कोचिन शिपयार्ड की बात करें, ये पार्टनर किया इन्होंने आईआईटी मद्रास के साथ टू सपोर्ट मैरीटाइम स्टार्टअप्स। आईआईटी हैदराबाद ने डेवलप किया एक अफोर्डेबल फाइबर री इन्फोर्स कॉन्क्रीट को। पीएम मोदी ने अनवेल किया लोगो थीम वेबसाइट ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। ठीक है, वासुदेव कुटुंबकम ये थीम रहेगी यहाँ पे। फिर एम अटल इनोवेशन मिशन ने लॉन्च किया वीमेन सेंट्रिक चैलेंजेस अंडर अटल न्यू इंडिया चैलेंज, जो कि ANIC प्रोग्राम भी बोला गया। फिर रिलायंस के द्वारा एक्वायर किया गया मेट्रो कैश एंड कैरी इंडिया को फॉर 4060 करोड़ रुपीज़ की डील के हिसाब से। नेक्स्ट आ जाता है इंडिया। इंडिया ने एक MOU साइन किया कंबोडिया के साथ इन द एरियाज ऑफ कल्चर, वाइल्ड लाइफ एंड हेल्थ। नितिन गडकरी ने अनाउंस किया न्यू प्रोजेक्ट्स ऑफ 1.6 लाख करोड़ रुपीस इन नॉर्थ ईस्ट। पीएम ने फ्लैग ऑफ किया साउथ इंडिया का पहला वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को। पीएम मोदी ने अनवेल किया 108 फीट टॉल स्टैचू ऑफ श्री नादा प्रभु केम गौड़ा एट बेंगलोर एयरपोर्ट, जो कि केम गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देन भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। ये पूछा जा सकता है, पूरा चांस रहेगा, मार्क करें। ठीक है, नेक्स्ट है आर.के. सिंह। आर.के. सिंह ने लॉन्च किया ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल को। फिर 41st इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। देन कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बिल्ड किया इंडिया का फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैंटामरन वेसल। रिलायंस इंडस्ट्री टू मेक इंडिया फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, कहाँ पर? चेन्नई में। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। पहला, सिलचर सिलहट फेस्टिवल ऑब्जर्व किया गया 2022 में, कहाँ पर? असम सिलचर में। 17th सेशन ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल कमेटी फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कहाँ पर हुआ? मोरक्को में हुआ था। ICAO एविएशन सेफ्टी रैंकिंग रिलीज की गई और इंडिया की रैंक रही 48 इसमें। नाइट फ्रैंक रिपोर्ट की बात करें तो मुंबई की पोजीशन आ जाती है इन द 22nd पोजीशन इन द प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स फॉर द थर्ड क्वार्टर ऑफ 2022 और यहाँ पर दुबई ने टॉप। देन NSE इंडेक्सेस लॉन्च्ड अ न्यू इंडेक्स निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स अप्रैल 2023 में, और इसको अप्रैल 2033 में इसको रिडीम किया जाएगा। NIHR ग्लोबल रिसर्च सेंटर ग्रांट्स 10 मिलियन यूरो ग्रांट ताकि लॉन्ग टर्म रिसर्च की जा सके इन द हेल्थ केयर सेक्टर। देन S&P ग्लोबल ने इंडिया की फोरकास्ट प्रोजेक्ट की फॉर 2023 के लिए 6% और 2022 के लिए 7%। सीनियर न्यूक्लियर साइंटिस्ट KV सुरेश कुमार, इनको नया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है भाविनी का। B-21 ये रेडर आपका एक एयरक्राफ्ट है जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब कैपेबल, आपका न्यूक्लियर कैपेबल एयरक्राफ्ट है, और ये वर्ल्ड का पहला 6th जनरेशन न्यूक्लियर बॉम्बर रहेगा। B-21 USA का है ये। IIT मद्रास ने अभी एक सिंधुजा 1 करके एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर डेवलप किया जो कि सी वेव की मदद से एनर्जी को जनरेट करेगा। ठीक है, DRDO ने हैंड ओवर किया AHSP ऑफ आकाश वेपन सिस्टम टू मिसाइल सिस्टम क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी। अर्जुन अर्गेसी की बात करें एंड वैशाली रामेश बाबू, इन्होंने ब्लिट्स टाइटल इन टाटा स्टील चेस इंडिया जीत लिया है। ISSF प्रेसिडेंट्स कप 2022 की बात करूं, इंडियन शूटर रुद्राक्ष पाटिल, इन्होंने ISSF प्रेसिडेंट कप को हासिल कर लिया। एंड वीमेन 50 मीटर थर्ड पोजीशन राइफल में अंजुम मोडगिल ने सिल्वर मेडल जीता। देन पद्मा भूषण अवार्डी एंड रियोन फ्रेंच ऑटर डोमिनिक लेपेर, इनका निधन हो गया है। नेवी डे की बात करें तो 4 दिसंबर, इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स की बात करें तो 4 दिसंबर और वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल वॉलंटरी डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट 5 दिसंबर को। महाराष्ट्र वो पहला स्टेट बन गया टू सेपरेट दिव्यांग डिपार्टमेंट, जिन्होंने एक अपना सेपरेट दिव्यांग डिपार्टमेंट को सेटअप किया। फिर तेलंगाना ने एक पैक्ट साइन किया कॉइनबेस के साथ टू प्रमोट Web3 कम्युनिटी। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया का पहला गोल्ड ATM कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? हैदराबाद में। एंड जम्मू एंड कश्मीर वो पहला फास्ट टैग एनेबल पार्किंग सिस्टम भी लॉन्च किया गया इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे करंट अफेयर्स। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अब आ जाते हैं होमवर्क पर। पहला, व्हाट इज द व्हेन इज योर इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी ऑब्जर्व्ड? फिर रिसर्चर्स फ्रॉम विच इंस्टीट्यूशन हैज डेवलप्ड एन एनर्जी एफिशिएंट कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म टू बिल्ड नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस? एज पर द रिसेंट डाटा, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ इंडियाज एनुअल रेट ऑफ HIV इन्फेक्शन बिटवीन 2010 से 2021? एंड चौथा, विच स्टेट हैज पास्ड बिल टू रेज अवेयरनेस
to raise reservations in the state to 76%. और पांचवा, which high court has banned the use of mobile phones inside temples. तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स. कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता गूगल कीजिए और कोई चीटिंग करके आंसर नहीं करेगा. ठीक है कि ऊपर से आंसर देख लिया और फिर कमेंट कर लिया. खुद रिसर्च कीजिए, फिर आप इजीली आंसर कर सकते हैं. ऑलराइट, तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपका क्या व्यूज़ रहेगा फ्रेंड्स ऐसे सेशन पे. क्या आप चाहते हैं ऐसा सेशन हम फ्यूचर में लाते रहें. वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए अगर आप हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं. सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.